Hello, everyone. Good morning to the Upskill School, the channel which we run to create and bring industry leaders and expert. और आज हमारे साथ ऑथर शेरी जी हैं. Welcome, author शेरी जी, to the Upskill School podcast and Thank you, YouTube channel. Abhishek. Thank you for having me. So before we begin, I would like to introduce the great amount of work author Sherry Ji is doing. First of all, he is the international public speaking coach. And in fact, he has taken a challenge to bring public speaking to every foray and to every human being and a child and a kid in Bharat, in India. He's also doing programs abroad. He is a 3-time TEDx speaker. 3 बार ये TEDx speaker रह चुके हैं, 3 बार ये जोश टॉक्स में जा चुके हैं. ये खुद MS टॉक्स के नाम से एक पूरा एक ब्रांड सिस्टम चलाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे यंग लोगों को ये मौका देते हैं अपने प्लेटफॉर्म में आने के लिए और अपनी पब्लिक स्पीकिंग, अपनी प्रतिभा को बताने के लिए. और इसके अलावा, as I tell you, if I start telling his accolades, I'll not be able to close it because he has done tremendous amount of work. So with this, a great transformational skill building coach, I would say, a great individual, a nice person from the heart, running so many campaigns. I welcome you, author Shari ji, once again to the program. Thank you, Abhishek ji. And just to correct you, TEDx has been done now 11 times, and Ghost Talks has been done 4 times. Yes, I don't know from where you picked the data, but that's completely fine. Maybe, yeah. So I told you, the kind of the work you have done is phenomenal. So author Shari ji, we'll start with one nice quote from Harivansh Rai Bachchan ji, where he goes on saying that बंजर माटी से मैंने अपने जीवन को सींचा है. So I know that you have come to this place, to this stage, to this level after so much of panache, so much of hard work, so much of effort from your side, so much of contribution. I would like to know your experience, or also share with the audiences that your experiences on how you have come to this stage, with your life learnings, और किस तरीके से आपने चीजों को चरितार्थ किया, उसके बारे में. Thank you very much. I would like to start by saying that बदल डालो खुद को या वक्त बदलना सीखो. बदल डालो खुद को या वक्त बदलना सीखो. मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो. हर हाल में चलना सीखो. हर हाल में चलना सीखो. So it's about the journey. It's about the persistency which has helped me, motivated me, inspired me to drive with my own force. मैं जब 13 साल का था तो उस समय मेरे घर के कुछ हालात ऐसे हुए जिस वजह से हमने अपने घर को भी खोया, हमने अपने सारे एसेट्स को खोया. उस समय तो समझ नहीं आ रहा होता ना कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. that is the moment when you don't understand what's happening with you and why this is happening with you. And I was a teenager. I was thinking, why this is happening to me. My parents could not afford my school fee. I was restricted from the school, and all those things were happening in my life, and I was wondering why this is happening with me. From there it all started. And I remember that when I was 14, I did my first ever job. I started working early at the age of 14 years. And from there was no looking back, because for initial 3-4 years, what you can expect from a kid. तो वो सब चीज़ें एक बच्चे की तरह मैंने शुरुआत करी. और धीरे धीरे जो लोग जो एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है, वो जब जॉब करने के लिए जाता है तो वो 25-27 साल का जब हो जाता है, तो उस समय जो उसकी समझ होती है, वो समझ मेरे अंदर 14-15 साल की उम्र में आ चुकी थी. यू कैन से आई अचीव्ड मैच्योरिटी एट एन अर्ली एज. और वो उसका मुझे फायदा ये मिला कि मैं जैसे जैसे ग्रो करता गया, तो मैं अपनी उम्र से 5 से 10 साल बड़ा हो गया अपने दिमागी तौर पे. एंड बाय द टाइम आई हिट 25, आई वाज अ मैच्योर इंडिविजुअल लाइक 35. तो मेरी जो जर्नी है, उस जर्नी में अर्ली वर्क, अर्ली एज से मैंने वर्क करना शुरू करा, वो एक चीज निकल के आती है. और पहले तो मुझे लगता था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने अपने एकेडमिक्स फॉलो नहीं करे, तो मुझे बहुत फील होता था, मुझे बहुत लगता था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, एंड व्हाट पीपल विल थिंक व्हेन आई विल शेयर दिस. बट आज का जो जमाना है अभिषेक, वो बहुत बदल गया है. आज उल्टा मैं जब ये चीज बोलता हूँ कि मैंने 13 साल की उम्र से अपनी जर्नी को शुरुआत करी, तो पीपल फील रियली हैप्पी कि अच्छा हुआ आपने 13 साल की उम्र से चालू कर दिया. क्योंकि जो लोगों ने 20 और 21 और 22-23 साल से अपनी जर्नी की शुरुआत करी, वो आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक शायद आप पहुंच गए. सो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट हाउ यू आर
starting your journey. It's about where you are taking your journey to. तो अल्टीमेटली धीरे धीरे ये सब चीजें मेरी लाइफ में एक तब्दीली लाती गई, बदलाव लाती गई. एंड बाय द टाइम आई वाज 25 आई कुड सी दैट अ करियर वाज वेटिंग फॉर मी इनटू द बैंकिंग सेक्टर. फिर वहां से मैंने अपने काम को करना शुरू करा बहुत सिंसियरली. बैंकिंग में मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखे अपनी लाइफ के, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. सो बैंकिंग सेक्टर हैज गिवन मी टू रियल गुड key values of life. And with honesty and integrity, I started doing my work and setting them as my cornerstone. And from there was no looking back. वहां से फिर चीजें चलती चली गई. और finally there was a time when I was feeling low in my life. वो कहते हैं ना कि आप 10-12 साल जब काम कर लेते हो तो एक करियर ब्रेक चाहिए होता है. तो मेरी लाइफ में वो करियर ब्रेक आया. आई वॉज फीलिंग लो और उस टाइम आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड ऑल्सो. तो मैंने उन्हीं दिनों मैंने नया नया किताब पढ़ना चालू किया था. तो जब मैंने वो किताब पढ़ना चालू किया एंड दैट हैज रियली मूव्ड मी फ्रॉम इनसाइड. आई थॉट दैट आई शुड रीड दीस काइंड ऑफ थिंग्स मोर. वहां से फिर मेरी जर्नी रीडिंग की भी शुरुआत हुई और फिर मैंने लिखने की भी शुरुआत करी. मैं बचपन में जब 15-16 साल का था तो मैं कुछ शेर वगैरह लिखता था. एंड दिस हैज केम टू मी बिकॉज माय डैड वाज अ राइटर. उनकी भी किताब है एक. एंड वो उर्दू में और हिंदी में बहुत सारी शायरी और गजलें लिखते थे. तो शायद आप ये कह सकते हो कि वो डीएनए शायद मेरे अंदर भी आया कि मुझे वो थोड़े बहुत शेर व शायरी करने का शौक पैदा हुआ. लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम गोइंग टू चूज माई जेनर एज नॉन फिक्शन एंड आई एम गोइंग टू राइट ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. तो वहां से फिर ये सब चीजें एक मेरे अंदर आती चली गई. तो राइटिंग के बहुत सारे फायदे हैं. 3 फायदे मुझे समझ में आए राइटिंग करने से. सबसे पहला, व्हेन यू राइट यू हील योरसेल्फ. दूसरा फायदा मुझे ये समझ में आया कि व्हेन यू राइट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, है ना. और तीसरा फायदा मुझे ये समझ में आया कि व्हेन यू राइट यू चेंज योर ब्रेन पैटर्न्स. और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे पड़ता है. एंड दैट हैपेंड एग्जैक्टली विद मी. एंड फ्रॉम देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई लॉन्च माय फर्स्ट बुक एंड देन बुक्स वर केप्ट ऑन कमिंग. तो हर साल एक किताब लिखने का मेरा एक कोशिश रहता है. तो इट्स बीन 10 बुक्स सो फार and I'm writing my 11th, which is going to be published this year, and it's around public speaking. Besides this, this entire journey, I would say कि मेरा जो ये सफर रहा है पूरा राइटिंग से शुरू होकर के फिर धीरे धीरे स्पीकिंग में आया. तो देयर वाज अ टाइम इन माय करियर व्हेन आई वाज अबाउट टू रिसीव एन अवार्ड from one of my functional head in the organization. I went on the stage, my friends were there. There were around 300 people in the amphitheater, and they were all applauding about my achievement because I was in top 3. And when I went on the stage, I was very confident that I'm going to go on the dais and speak about my achievements. Even my girlfriend was sitting over there. She also said that when you go on the stage, just speak and rock and tell everybody how you achieved. I said, yeah, I will definitely talk about it and I'm going to share about my journey. But the moment I went there, I had a complete blackout in front of me. The butterflies were gushing out of my stomach. My hands were shaking, my legs were trembling, my heart was pounding. And later on, I realized that it was a panic attack. For the first time in my life, I have faced live on the stage in front of 300 people. I could not utter a single word that time, Abhishek. And that was the moment I realized that, alas, this subject of public speaking should have been taught in our schools and college times. Because what they have taught in the academics, it's not contributing to my success as of now. What is contributing to my success right now is effective communication. Is the selling skill, is the negotiation skill, is the problem solving skills, is the emotional intelligence skills. And this all comes as a byproduct when you express yourself. And expression comes with public speaking. So I realized that this entire journey, I'm going to learn the art of public speaking. I took an oath that day and I started learning about this subject. And from there was no looking back. I listened to more than 7,000 public speakers live, offline, online, on the stage to understand why they do what they do from the stage, why they move their hands, why they share their stories, how they start, how they stop, what kind of content they pick up, how they deliver the content, how they choose their pauses, how they choose their diction, and everything about a public speaker. And that's when I realized and I started taking interest more into the study of rhetoric and oratory skills, which is the formation of public speaking. This word public speaking got popular back in 1914 when Dale Carnegie, he started telling everybody that speaking in public is an art everybody should learn. And who knew that in 1927, when Toastmasters also got started, another platform which is very popular amongst the aspiring public speakers also got started. And that's when the
entire industry of personal development was getting ready in United States of America. And in 1950, Earl Nightingale was on top of his career, followed by then Zig Ziglar, then Tony Robbins and Jim Rohn and Les Brown. So all these people were the byproduct of public speaking. You know, they have learned the art of influence and persuasive speaking, and that's how they became motivational speakers, public speakers, keynote speaker. Not to forget Brian Tracy also. So all these people have their own set of journey. But if you see how they have started, they also started by choosing a mentor. So my contention here is that if you know how to speak, that's good. But if you really want to learn how to speak, what to speak, when to speak, and with whom to speak, and in what way to speak, you should definitely consider having a mentor in your life, because the mentor is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. He's already been there and done that. So when the race is long and the time is short, it's advisable to pick up a mentor. And that, you know, that's the entire strength, that's the entire amalgamation of public speaking. And in 2022, with my efforts and my mission of 1 million speakers, I got a stand from the government of India when Honorable Prime Minister of India, he recognized me with the Honorable Cabinet Minister and Petroleum Minister Shri Hardeep Singh Puri and Prime Minister Narendra Modi. They invited me at their house, and they recognized my effort into the area of public speaking. Now this was big because I was picked up from LinkedIn. This came as a very big news, and I was not even thinking in my wildest of dreams that I'm going to get invited by the PM house, and I was one of the chosen top 6 corporate delegate in that delegate of 92 people from all over the world. And that was one of the moments which I really cherish in my life. And from there was no looking back. So the boy who was struggling early in his career, who drove bus, who drove taxi, who cleaned floors, who worked from 4 a.m. in the morning till 11:30, 12 p.m. in the night, who was struggling to had his education, who was not even aware how to write and how to read books, who has never been good in academics, always an average student, is right now sitting in front of you talking about the achievements. So I would simply say that whenever you get an accomplishment or you achieve something, it adds more responsibility on your shoulder. Correct. Because you are inclined towards more responsibility for the society as an individual. So whenever I receive an award now, it's been more than 500 awards now. Whenever I receive an award, I go with the same vigor, with the same vitality, with the same respect on the stage, and I say, I again got some responsibility on my shoulder today. And thank you very much for shortlisting me for this honor and respect. So that's about my journey very, very quickly. And rest, you can ask anything. नो थैंक यू सो मच, ये बहुत ही डिटेल में आपने बहुत अच्छी चीज बताई। और इनफैक्ट जो जो यूथ है आज के डेट में, जो इंडिया में जो स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं, अगर वो यूथ ये देख रहे होंगे तो उनको ये इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि किस तरीके से संघर्ष हर किसी के जीवन में है। देयर इज स्ट्रगल इन एवरीबॉडीज लाइफ। द ओनली थिंग इज दैट उन संघर्षों को कैसे आप चुनौती बनाते हैं और अपने लिए एक मकाम खड़ा करते हैं। तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली अपलॉड एंड से द एफर्ट यू हैव पुट इन। और तो शरी साहब, Thank you एक very much. मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था और जैसे आपने बताया बिल्कुल वही रिसर्च का पॉइंट है आया है कि एक जीवन में सक्सेस पाने के लिए अगर अगर हम देखें कि भाई आपको आईक्यू कितना होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल कितने होने चाहिए, तो ये जो रिसर्च में निकल के आया, मेरे ख्याल से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है। रिसर्च में ये निकल के आया है कि 80% आपके पास ईक्यू और सॉफ्ट स्किल की क्लास की कैपेबिलिटीज होना चाहिए और आईक्यू तो ऑफकोर्स 20% या 30% चाहिए। जबकि हमारे देश में क्या हुआ कि हमेशा फोकस रहा कि हम कैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स बनाएं, डॉक्टर्स बनाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएं, ग्रेजुएट्स बनाएं, उनको स्किल से भर दें। बट किसी को भी, जैसे आपने बताया, ये स्किल नहीं है कि 100 लोगों के सामने खड़े होकर कैसे बात करें, अपने देश के बारे में क्या बोलना है या अपने खुद के काम को कैसे प्रस्तुतिकरण करनी है, ये किसी के पास नहीं है। जैसे आपने बताया हमारे एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी में भी ये नहीं था। हमने एक प्रकार से एजुकेटेड मॉरॉन्स पैदा करने चालू कर दिए जो कि एक प्रकार से लेबर माइंडसेट से काम करते हैं। ना तो एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग होती है, ना तो ये थिंकिंग होती है कि हम कैसे अपना और अपने साथ वालों को कैसे एक साथ ले सके। पर आप इस एरिया पे बहुत काम कर रहे हैं, बिकॉज आई नो दैट you have met many educationists, you have already met many deans, university people, you have met, I think, lakhs of students in your personal interaction, and I would say thousands of speakers. So इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए या थोड़ा सा और समझाइए कि किस तरीके से हम लोग आने वाले समय, आप तो एफर्ट कर ही रहे हैं, बट बाकी जो ऑडियंस है जो अभी भी कहीं किनारे पे बैठी है और सोच रही है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, उसको आप क्या प्रेरणा देंगे? क्योंकि अगर हम आगे निकल के नहीं आएंगे तो हमारा 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, डेवलप नेशन का, वो डिले हो सकता है। तो उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, आपने विकसित भारत की बात करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ ग्रेट सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट. I personally believe, Abhishek ji, that India
has a huge soft power which can be leveraged on global platforms. इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को लेवरेज कर सके ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। Correct. और हमारी जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसकी 40% जो पॉपुलेशन है, विच इज अंडर 25, इट इज अ रेडी टेक सेवी इंग्लिश स्पीकिंग लेबर फोर्स, रेडी फॉर द इनोवेशन, रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी गिवन टू द कंट्री। यही है विकसित भारत। आप जी ऐसी कोई कंट्री का नाम बता दीजिए मेरे को जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में रेडी इंग्लिश स्पीकिंग फोर्स हो जो काम कर सकती है, और टेक सेवी फोर्स हो। नहीं है किसी देश के पास। यही तो यस खासियत है हिंदुस्तान की। जी इसीलिए जी तो है मेरा भारत महान। तो हम लोगों ने ये जो विकसित भारत का प्रण लिया है 2047 का, हमारे जी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये इसको बहुत प्रमोट करा है। सो देयर इज ऑलवेज अ कॉज एंड देन वी फॉलो दैट कॉज एंड वी टॉक अबाउट इट। I हम्म, personally feel that there are two things which can really move the industry in the next 25-30 years. Number हम्म, one is जी technology, artificial intelligence, AI. Everybody is talking about it. And that's automation. Number two is communication. यस ये बहुत इंपॉर्टेंट दो की ड्राइवर्स हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और ऑलरेडी लेके जा रहे हैं, और आगे भी ले जाएंगे। तो मैं तो कम्युनिकेशन साइड से हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी साइड से हूँ नहीं। करेक्ट लेकिन मैं अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है पब्लिक कम्युनिकेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच यू डू, यस private communication and public communication. When we talk about public communication, it is the public speaking skills, talking in front of public, presenting yourself, your ideas, your thoughts, your expressions in public. तो अगर आप ये पब्लिक स्पीकिंग वाला स्किल जो है अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, देखिए इसका क्या फायदा मिलेगा आपको। इसका फायदा मिलेगा आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आज आप जूनियर मैनेजमेंट कैडर पे हैं, आप सीनियर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। whenever you talk about leadership, leadership is equal to speaking. एब्सोल्युटली So, in every leadership position you are in, you're supposed to talk in front of people. You're expected to motivate a group of team which you carry with yourself. You're supposed to talk about company's product and services with the interrelated departments within the city and outside the city, and sometimes outside the country with your foreign clients as well. तो ये आपको leadership कैसे देगा? Speaking skills देगा। When your speaking skills will be appropriate, then public will, the people will like you, they will appreciate you, and they will get influence from you. यस या सो So when इनफैक्ट you speak, yeah, जैसे आपने बताया कई बार ये नैरेटिव सेट करने की बात भी आती है कि व्हाट इज दैट वी आर ड्राइविंग एज एज अ कंट्री एज अ इंडिविजुअल। हम क्या ड्राइव कर रहे हैं, हम अपना कम्युनिकेशन कैसे बता पा रहे हैं, हम कैसे अपनी चीजों को समझा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज ग्लोबल स्टेज में डॉक्टर जयशंकर इज नोन फॉर फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल, जो आपने एग्जैक्टली बताया कि हाउ आर वी एबल टू कम्युनिकेट आवर पोजिशन। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक, अगर हम अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और अपनी चीजों को नहीं बता पाएंगे तो एक रॉन्ग नैरेटिव, रॉन्ग परसेप्शन बनता है, जिसके कारण हमको डिसएडवांटेज मिल सकता है एज अ कंट्री ऑल्सो एन देखिए आज इंडिविजुअल। जो दे हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक टच करा है। आज देश की हालत क्या है देखिए। आज हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए। आज भी माता पिता का यही माइंडसेट है। अब बच्चा जाता है, सबसे पहले वो जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करता है, फिर वो जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करता है, वो इंजीनियर बन जाता है। उसको टॉप 24 जो आईआईटी हिंदुस्तान में है उसमें से एक में एडमिशन मिल जाता है, बच्चा आईआईटी बन जाता है। अब बच्चा आईआईटी में जाके, मैं तो आईआईटी में लेक्चर देके आया, मैं तो आपको रियल टाइम बता रहा हूँ। जी जी मैं जी आईआईटी में लेक्चर्स देके आया हूँ, और मैं रियल टाइम स्टूडेंट्स के साथ 2-2 घंटे बैठ के वन ऑन वन इंटरेक्शंस करके आया हूँ कि आईआईटी के बच्चा क्या सोच रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अब आईआईटी में बच्चा पहुंच गया है, बच्चा ऑलरेडी बहुत बहुत इंटेलेक्चुअली एकेडमिकली बहुत होशियार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब उसने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, एक एप्लीकेशन बना लिया, तो टेक्नोलॉजी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो गैप। वो बच्चा अपनी उम्र से बेहतर कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब उस टेक्नोलॉजी को, उस एप्लीकेशन जो उसने बनाया है, उसको बताने में प्रॉब्लम है। एंड एज यू राइटली सेड, if you can make an application or software and you innovate something, good for you. But when the time comes to talk about what you have made, talk about your innovation, then many people are not able to express. तो वो जो आपने इतनी मेहनत करके जो बनाया, उसका क्या फायदा मिलेगा आपको, उसको कुछ भी कैसे आप लेवरेज करेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको आर्टिकुलेशन स्किल्स को सीखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको अपनी आवाज का इस्तेमाल, चूजिंग द राइट वर्ड्स विद द राइट पीपल, एंगेजिंग द पीपल, ये सब सीखना पड़ेगा। और इसके बगैर बात नहीं बनने वाली है।
क्योंकि आज आप एक टॉप कॉलेज से एजुकेशन ले लेते हैं, आप इनोवेट भी कर लेते हैं, आपकी रिसर्च भी बड़ी स्ट्रांग है, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में आप बढ़ते चले जाएंगे, अब क्योंकि आपने अपने सॉफ्ट स्किल की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। बिल्कुल। हार्ड स्किल्स आर गुड, सॉफ्ट स्किल की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, तो क्या होगा, वो धीरे 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 आपकी कमजोरी बन जाएगी। जो तो वो थी अभी तक, कमजोरी आपको जो जो अभी हमारी तक है भी। कमजोरी है, कई बार देखा हाँ। मैंने, हम जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आया हूँ, बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है हमारी वर्ल्ड में। द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, द पास परसेंटेज, द डिटेलिंग एवरी सीए और कंपनी सेक्रेटरी और आईसीडब्ल्यू डज इन इंडिया इज जी। फिनोमिनल, वे बियॉन्ड एनी वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स। बट जब एक सीए को अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उसकी फर्म के थ्रू या अपने कॉर्पोरेट प्रेजेंट करना होता है, तो हर कोई उतना स्मार्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स ने उसको अलग से ध्यान देके कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी, जैसे मेरी बच्ची ने पब्लिक स्पीकिंग की है, आपके साथ भी सीखी है, तो अनलेस वो पेरेंट एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से कुछ नहीं आता है। और जैसे आपने बोला कि आपके पास कितना बड़ा भी प्रोडक्ट हो, कितना अच्छा भी नैरेटिव हो, कितनी अच्छी सोच हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो, लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हो, कन्विंस परसुएट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, फिर रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा आप। अब मैं जब आईआईटी गांधीनगर में गया था, वहां पे जी। वहां का सबसे होशियार बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। उससे मुझे तो नाम भी याद है, होशियार बच्चा, और वो अपने ना सॉफ्टवेयर के बारे में बता ही नहीं पा रहा है। बताइए। अच्छा, उसको उसको ये भी समझ में आ रहा है कि मैं ये कर नहीं पा रहा, तो मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, वो उस हम्म। चीज को भी समझ रहा है। फिर मैंने उसको हम्म। बोला, मैंने कहा आपको पता है कि आप इतने बड़े सॉफ्टवेयर को बना चुके हो, इतनी बड़ी इनोवेशन कर चुके हो, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, तो हम्म। आप इसके बारे में नहीं बता रहे, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, आपको पता है इस बारे में? कहते सर आई एम एब्सोल्युटली अवेयर। लड़का केरला से था, जी। so he was talking to me in English. He said, I'm absolutely aware, but I really want to work on it. Nobody taught me, nobody told me that this skill is very important. Now I'm realizing it. And after taking your session, I realized even more. These were his words. तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, वो यही बात कर रहे हैं कि देखो, टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह है, इनोवेशन, रिसर्च, क्रिएटिविटी अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप उस क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे ना, वो क्रिएटिविटी की वैल्यू, उसका दाम नहीं लगने वाला। यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम अवेलेबल रहते हैं, हम अपनी चीजों को समझा पाते हैं, वो हमको, और जो आप कर रहे हैं, आई थिंक आई वुड 100% से दैट आपका काम कमेंडेबल है सर, बिकॉज यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट सॉफ्ट स्किल इशू विच भारत हैज। सो सर, आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। In fact, especially on the skill and the youth, and of course you are meeting youth regularly, you are working on the skill, business skill इंडिया में भी आप engaged है, उसके बारे में जो एफर्ट्स है हमारे यूथ को अपस्किल करने के लिए सर, क्योंकि अपना चैनल भी है द अपस्किल स्कूल, सो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत हेल्प करेगा कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंग जनरेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जो कई बार अननेसेसरी के कॉन्सेप्ट्स में और सोशल मीडिया में फंस जाती है और अपने करियर को खराब कर लेती है, और ये भूल जाती है कि अपस्किलिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में few suggestions, few steps they should follow. The first thing which I would like to share with this interaction is develop a high income skill. I'm talking about all the youth. आपके Correct. पास एक हाई इनकम स्किल होना बहुत जरूरी है। इधर इट कैन बी कॉपी राइटिंग, क्योंकि पूरा इंटरनेट राइटिंग से भरा हुआ है, तो लर्न द Mhm. आर्ट ऑफ कॉपी राइटिंग, इट्स अ फिनोमिनल स्किल टू हैव। सेकंड, लर्न द आर्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग। अगर आपको लगता है कि आपको क्रिएटिविटी पसंद है, आजकल वीडियो इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही है, तो आपको वीडियो एडिटिंग स्किल्स लेकर के आप एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड एडिटर बनना चाहते हैं, तो दिस इज हाई इनकम स्किल। थर्ड इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल। तो पब्लिक Absolutely. स्पीकिंग स्किल भी एक हाई इनकम स्किल है, ठीक है ना? तो कंटेंट क्रिएशन स्किल, रिसर्च स्किल, ये जितने भी स्किल है, ये हाई इनकम स्किल है। तो इस पे आप Mhm. काम करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप अपने एक हाई इनकम स्किल की वजह से सारी जिंदगी बैठ करके अर्न करेंगे। जी। ठीक है, आजकल डिजिटल इकोनॉमी है, तो आप डिजिटली भी कोई स्किल सीख करके अपने आप को एक एक स्किल ऐसा दे सकते हैं जिससे कि आप पूरी जिंदगी लाइफ में एम्पावर्ड फील करने वाले हैं। तो ये मेरा एक मैसेज यूथ के लिए है। दूसरा मैसेज ये है कि टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने Yes. माता पिता का ध्यान रखें, अपने माता पिता की इज्जत करें, उसके रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आजकल जो मैं यूथ में बदलाव देख रहा हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ, एडवांसमेंट की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं, वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि उनके ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, उनको दुनिया में लाने वाले लोग कौन है, उनके माता पिता ही तो है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, उनकी जी। रिस्पेक्ट अर्न करना बहुत जरूरी है। घर से बाहर जा रहे हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की नजर लग गई, किसी की बात आपको दिल पे लग गई, तो अपनी माँ का, अपने पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ होगा, आपकी दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई नजर आपको लग नहीं सकती। जी। अपने माँ जी। बाप का आशीर्वाद लेके जाए। तो पेरेंट्स आर गॉड ऑन अर्थ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना? हम्म। एंड तीसरा, रिस्पेक्ट योर मेंटोर्स। आप जिन Yes. जिन से सीख रहे हैं, या जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जो जो चीज लाइफ में सीखनी है या आपको एक्सपर्ट बनना है, हर एक कैटेगरी का मेंटर बनाइए। अगर आप फिटनेस में है, फिटनेस का मेंटर अलग होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअलिटी का मेंटर अलग होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, उसका एक मेंटर अलग होना चाहिए। तो अपने जितने भी मेंटोर्स हैं,
उनकी भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये 3 चीजें आप फॉलो करेंगे, लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। लोग आपका नाम पूछेंगे, आपका नाम पे 4 साल लगेंगे, आप खूब सारे पैसे कमाएंगे, और धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, रिजक की कोई कमी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप जब ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। यू बिल्कुल। फॉलो द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो स्टे हम्बल एंड यू विल नेवर स्टम्बल इन योर लाइफ। या क्योंकि ग्रेटिट्यूड रहेगा तो ऊपर वाले की मेहर जो बोलते हैं, ग्रेस, वो और आती है। ये मैंने अपने गुरु से सीखा है कि जितनी आप ग्रेटफुल फील करते हैं, उतना अबंडेंस और ग्रेस मास्टर से मिलता है। जो हमारे मेहर जो वर्ड यूज होता है ना, हम उसकी बात कर रहा हूँ। ऑदर साहब, हम एक अच्छे स्टेज में हैं, बस कुछ और समय आपके साथ 2-3 मिनट और आपका कीमती समय। हमारे पास एक अच्छी सी बुक है लीडरशिप के ऊपर, बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। सो पेज नंबर 1 से 75 के बीच में आपका कोई अच्छा नंबर जो आप पसंद करते हैं, मुझसे आज लीडरशिप के ऊपर एक कोट पढ़ते हैं कि क्या है आज मैसेज हमारे लिए। 21 कर लीजिए। 20। तो 21 है सर, फॉर अ गुड मैनेजर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट विथ पेशेंस एंड पॉइस। मैं रिपीट करता हूँ, फॉर अ गुड मैनेजर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट विथ पेशेंस एंड पॉइस। जैसे जैसे आपने बताया कि इवन फॉर अ गुड स्पीकर इन दैट स्टेज यू नीड दैट पेशेंस एंड पॉइस टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू। योर थॉट सर? My thoughts are totally echoing with what Guruji has written. तो द पावर ऑफ मोमेंट बोलते हैं हम इसको। पावर ऑफ यस। मोमेंट में क्या होता है कि आप अभी जो अभी ये जो वक्त जी रहे हैं आप, ये वक्त निकल गया। निकल गया। अभी हमने 15-20 मिनट पहले इंटरव्यू शुरू किया था, वो वक्त निकल गया, वो निकल रिकॉर्ड हो गया बस वीडियो में, वो वक्त दोबारा नहीं आने वाला। गया। तो 18 मई 2024 का वो वक्त निकल चुका है। तो समय को संभालना सीखिए, लिव इन द मोमेंट एंड लिव योर बेस्ट। और बाकी अगर आप पावर ऑफ मोमेंट को रियलाइज करेंगे अपनी लाइफ में, तो जिंदगी तो आगे की तरफ चलती जा रही है, वक्त का चक्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप उस वक्त का क्या बेनिफिट, क्या यूटिलाइजेशन ले रहे हैं, आप अपने उस वक्त में क्या एफर्ट डाल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ बहुत क्विकली कि मेरी कोशिश ये रहती है, या तो मैं उस वक्त में सो रहा हूँ, और सोने के अलावा अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, या मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मैं लिखित से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मैं बोल करके कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मैं किसी के साथ बात करके कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आपको अपने पावर ऑफ मोमेंट को ऐसे समझना चाहिए। या नो, बहुत अच्छा आपने समराइज किया कि हम इस जीवन में आए हैं। बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, आई वुड कट अपॉन लास्ट वन और टू लाइंस कि इस जीवन में हम आए हैं, इस जीवन में हम कितना अपने लिए बटोरेंगे और सकेलेंगे। क्या हम, जैसे आपने कहा शरी साहब, कि कितना हम दूसरों को अब देंगे, और देने की जो खुशी है किसी भी स्तर पे जो आप दे सकते हैं। जैसे आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यूथ को, यंग जनरेशन को बेस्ट स्पीकर्स बनाने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे स्टेजेस में, तो हमको जितना हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतना हम अबंडेंट फील करेंगे और उतना हमको और मिलेगा। तो इन चंद शब्दों से आई वुड डेफिनेटली वंस अगेन विद ऑल माय heartfelt gratitude, I will thank you, Sarisa, for joining us for this quick bite and quick conversation. And I'm sure आपकी जो इतनी important journey के बारे में जो आपने बताया, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, विकसित भारत के बारे में, स्किल के बारे में, और इतने सारे पॉइंटर्स बताए, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैसे पब्लिक स्पीकिंग और टेक्नोलॉजी एक साथ आ सकते हैं, कैसे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जीवन को सक्सेस बनाने के लिए, ये सबको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं जाने से पहले एक 3 सक्सेस प्रिंसिपल भी देना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को। सबसे पहले ये है कि इफ यू वांट टू बिकम मोर देन यू हैव गॉट टू बिकम मोर देन यू आर। एंड सेकंड इज, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। एंड thirdly, formal education will make you a living, but self education will make you a fortune. तो ये 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत 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 उम्दा, बहुत बहुत लाभकारी, एंड बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन सरी साहब। एज ऑलवेज बीइंग सच अ नाइस पर्सन, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड फॉर द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग फॉर द कंट्री एंड फॉर ऑल ऑफ अस। Definitely we should keep engaging and make this mission of yours successful and reach as many as people as possible. Thank you once again, Sari. Thanks. थैंक यू जी।